Bismillahirrahmanirrahim. Here we are again. आज का हमारा जो टॉपिक है that is about the chapter 4 of first year chemistry, that is intermolecular forces. So let's talk about them. First of all, I would like to define the intermolecular forces. What are intermolecular forces? There will be two terms in that topic, intermolecular forces and intramolecular forces. So firstly we should have an idea about the inter and intramolecular forces. Let's define intermolecular forces. First of all, these forces are present in between molecules of a substance. एक सब्सटेंस के दो डिफरेंट या दो सेम आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उन्हें आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देंगे. सेकेंड वन, these will be the weaker forces. These will not be the stronger forces. These are weaker forces. Third one, these will affect the physical properties of that substance. It means जिस सब्सटेंस के अंदर ये पाए जाएंगे उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके ऊपर ये अफेक्ट करेंगे. और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दे have nothing to do with the electrons. या फिर आप इस पॉइंट को कह सकते हैं they do not depends on the electrons, क्योंकि इन फोर्सेस के पाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए they have nothing to do with the electrons. अब अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ जाए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो आप कैसे करेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने कहा कि जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं उन्हें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. और दूसरी जो आपके पास है ना, दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंट्रामॉलिक्यूलर, इनको आप एक और नाम से भी रिमाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा अपने लिए. दीज आर द inter atomic forces. It means inter mean in between. If the forces are present in between the atoms, these forces will be the intramolecular forces, and if the forces are present in between the molecules, these forces will be called as the intermolecular forces. Let's take an example. If we have a molecule like as HCl, like this, another HCl, and here is another HCl. Obviously there will be two poles in the HCl. One will be the partial positive and other will be the partial negative. Similarly, that one will be the partial positive and that one will be the partial negative. Same in that way. So there will be two types of forces. One I am showing with the dotted line, and one I have already shown with the complete line. The forces which are in between the atoms, these are interatomic forces. The complete line, these are known as the interatomic forces, or you may also say intramolecular. These will be. Similar, these forces which are shown with the dotted line, these forces are known as intermolecular forces. So हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने कहा
कि इफ द फोर्सेस आर इन बिटवीन द एटम, अगर फोर्सेस आपके पास होंगी एटमों के दरमियान, दीज फोर्सेस विल बी नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस. Between the atom, these will be the interatomic or intramolecular forces. And if these forces are present between the molecules, like I am showing that molecule, similarly there is another molecule, similar another. Now these are red line forces. These are in between the molecule. These are intermolecular. And if the forces are in between the atoms, which are shown by the complete line, these are the intramolecular or interatomic forces. Let's talk about the examples of the intermolecular forces. First of all, dipole forces. If a question is asked like something like why intermolecular forces are weak or intramolecular forces are strong than the intermolecular forces, तो हमें इसका आंसर कैसे करना होगा कि जो आपके पास इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस. तो इसकी रीज़न हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं जो कि एटमों के दरमियान होती हैं, जैसे ये है आपके पास, इनकी फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है. तो द फोर्सेस विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दीज फोर्सेस आर नोन एज द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. तो इन फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इस वजह से दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम इनको कंप्लीट लाइन से शो कर रहे हैं. और जो डॉटेड लाइन से मैंने शो की हैं, दीज आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इन फोर्सेस के बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइपोल का होना जरूरी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होगा तो ये फोर्सेस बन जाएंगी, और इनके लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. इसी वजह से ये अगर प्रेजेंट हों प्रेजेंट ना हो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास इंटर एटॉमिक या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी तो आपके पास ये जो एटम है ये रह हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस लाइन का होना, इट मीन इंट्रामोलिकुलर फोर्स का होना इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है. इसी वजह से दीज फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड द डॉटेड लाइन फोर्सेज विच आर नोन एज intermolecular forces, these are the weak forces. Let's talk about the dipole forces. It is quite evident from the name that these are dipole forces. It mean dipole क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर हम dipole किसे कहते हैं. Let's take an example of the HCl. As we know that the chlorine in the HCl, it is more electronegative and hydrogen is electropositive in nature. It means it is less electronegative. इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे. तो अपोजिट पोल्स के दरमियान पहले हम बात कर रहे थे डाइपोल क्या होता है. डाई मीन टू एंड पोल वर्ड मीन एंड्स, या फिर हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं सिरे. तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल्स होंगे उसे आप डाइपोल का नाम देंगे. जिस तरह से HCl के अंदर एक पोल पार्शियल पॉजिटिव वाला, दूसरा पोल पार्शियल नेगेटिव वाला, सिमिलर हर HCl के अंदर एक दो पोल्स होंगे. तो जो दो पोल्स हैं उनमें अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आएंगी, जो उन मॉलिक्यूल को आपस में मिला के रखेंगी, दीज फोर्सेस विल बी नोन एज द डाइपोल फोर्सेस. नेक्स्ट, the strength of dipole forces. It is directly proportional to the difference in the electronegativity of bonded atoms. कैसे? Let's take an example. If we have HCl, HBr and HI, what do you think कि किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा? Obviously, the electronegativity difference in between the HCl that will be the maximum in that case. उसके बाद HBr में और उसके बाद HI में.
तो हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्डेड एटम के दरमियान जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी। तो इन केस इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, फिर HBr में और एट द एंड HI में, क्योंकि difference in the electronegativity it is directly proportional to the strength of the dipole dipole forces. So the order will be something like this. Why we have not discussed about the HF? Because in case of HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है, इस वजह से उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के। Let's take example of the HCl. HCl हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट में हो सकता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो होता है गैसेस के अंदर। तो हमने क्या कहा, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, जितना ज़्यादा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसी वजह से HCl के नॉन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देयर विल बी द मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड के अंदर और उसके बाद गैसेस के अंदर। सो दैट वाज a relation between the dipole dipole forces of some different molecule. Let's take another example, that is ion dipole force. Second one is ion dipole forces. It is quite evident from the name that these forces will be present in between the ion and dipole. There will be an ion. Let's take example of the sodium chloride. That is an ionic compound. जब डिसोसिएट होगा तो एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। ये आपके पास हो गया आयन, और दूसरा हमें क्या चाहिए, डाइपोल। डाइपोल में एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल्स होंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द वाटर। जब आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उनके डिसॉल्व होने की वजह आपके पास आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और यू मे से दिस that the dissolution of the ionic compound is because of the dissolution of the ionic compound in water is because of the presence of the ion dipole forces, something like this. Obviously water is a polar solvent, तो इसके अंदर polarity होगी। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिटली चार्ज जो आयंस होंगे वो क्या कर लेंगे, इसको सोडियम को सराउंड कर लेंगे इस तरह से, और इनके दरमियान वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आएंगे, जिन्हें आप लोग नेम देंगे आयन डाइपोल फोर्सेस का। और जब वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड्स को हल किया जाता है और वाटर उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उनकी डाइल्यूशन हो जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेशन का। और जो एनर्जी का अमाउंट या हीट का अमाउंट उस दौरान रिलीज होता है उसे आप लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ से एक एमसीक्यू पूछी जा सकती है दैट विच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन वाटर, सो दैट फोर्स विल बी द आयन डाइपोल फोर्सेस। कि वो कौन सी फोर्स है जो आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए हेल्प आउट करती है या उसकी जिम्मेदार है, दैट one is the ion dipole force. Next है हमारे पास induced dipole force.
that one was second example, that is the third example. There are 2, 3, 4 example which are mentioned in the syllabus of the first year. 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे और 4th वन इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर के अंदर. Induced dipole force. It is quite evident again from the name that these forces will be present in between a dipole and another molecule which is induced. यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने डाइपोल क्रिएट करना है. वो किस तरह से होगा? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द नोबल गैसेस एंड वाटर. उसकी एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन फोर्सेस को आप लोग नेम क्या देंगे? These forces will be present between the polar and non-polar molecule. एक आपके पास पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उन्हें आप लोग क्या नाम देंगे? वो आपके पास हो जाएंगी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. यहाँ से एक और एमसीक्यू आ सकती है. अनडाइपोल फोर्सेस. These forces are 1% as effective as a covalent bond. इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है. These forces are as much as effective as compared to the covalent bond. अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड हो और उसके स्ट्रेंथ का इनसे मुआवजा किया जाए तो एक कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की निस्बत इनमें 1% स्ट्रेंथ पाई जाती है. मतलब these forces are very weak forces. नेक्स्ट है आपके पास induced dipole forces. These forces are also known as Debye forces. हमने कहा कि एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस इंड्यूस होंगी दीज आर द इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते होते हैं द नोबल गैसेस. एंड नोबल गैसेस आपके पास नॉन पोलर का रोल प्ले करेंगी और उसके साथ जो बेस्ट सॉल्वेंट है हमारे पास दैट इज द वाटर. क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर की जगह हमने वाटर ले लिया और नॉन पोलर की जगह हमने नोबल गैसेस ले ली. तो नोबल गैसेस को डिसॉल्व करवाना है वाटर के अंदर तो वो किस तरह से होगी? लाइक आपके पास एक मॉलिक्यूल है ये, इसके अंदर ना ऑलरेडी डाइपोल्स हैं इस तरह से. मतलब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास है इस तरह से जिसके अंदर पोल क्रिएट नहीं हुए. अब ये नॉन पोलर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से. अब क्या होगा जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर के करीब आएगा, एक साइड पे इसका न्यूक्लियस है सॉरी, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर भी इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएंगे और इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी दूसरी अपोजिट साइड पे चली जाएगी. नतीजे में क्या होगा? क्योंकि न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, सेम चार्ज से रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस रिपेल होगा दूसरी साइड पे चल जाएगा. टू पोल्स विल बी क्रिएटेड देयर. और इफ अदर पॉसिबिलिटी वो ये है कि अगर आपके पास इस साइड पे नेगेटिव चार्ज हो और इस साइड पे पॉजिटिव हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इनके ऊपर सेम चार्ज होगा, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल और इनकी रिपल्शन से जो इन इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इनके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी. इसकी वजह से अगेन इसके अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाएगा फॉर सम इंस्टेंट. जब डाइपोल क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इट मीन टू पोल्स विल बी क्रिएटेड और इसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल. लेकिन ये कौन सा डाइपोल होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि इंड्यूस करवाया गया है. इसी के अंदर से दो एमसीक्यू बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेसोल्यूशन ऑफ द नोबल गैसेस. आर यू मे से these forces are responsible for the solubility of noble gases in water. कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो नोबल गैसेस को वाटर में डिसॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबल हैं? दीज आर द इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर डीबे फोर्सेस. क्यों? क्योंकि हमने कहा पोलर नॉन पोलर में जो फोर्सेस होंगी दीज आर द डीबे फोर्सेस. तो पोलर वाटर और नॉन पोलर के लिए हमारे पास नोबल गैसेस का होगा रोल. नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल एमसीक्यू के तौर पे कि इफ वी हैव नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, which one will be more soluble or more soluble in water due to the induced dipole forces? तो इस केस में आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा that will be radon.
क्यों? क्योंकि हम बात करें ग्रुप की, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमें पता है जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इट मीन इसका साइज हीलियम का सबसे कम होगा और रेडॉन का साइज सबसे बड़ा होगा। अब जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करना आसान होगा, इजी होगा। डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट होगी तो तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। इट मीन डीबी फोर्सेस तभी क्रिएट होगी जब डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी। और डिस्टॉर्शन कब क्रिएट होगी? डिस्टॉर्शन तब क्रिएट होगी जब साइज बड़ा होगा, इसलिए डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से ये फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हिच फोर्सेस आर रिस्पांसिबल, फर्स्ट वन दैट वन, व्हिच फोर्सेस is responsible for the solubility of the noble gases in the water. These forces are the wave forces are the induced dipole forces. And again, which noble gas is most soluble in the water? कौन सी जो noble gas है वो वाटर के अंदर most soluble है? तो जिसका साइज आपके पास सबसे बड़ा होगा उसके अंदर डिस्टॉर्शन इजीली क्रिएट हो जाएगी। अगर डिस्टॉर्शन इजीली क्रिएट होगी तो उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्रिएट करवाना आसान होगा। इसी वजह से रेडॉन विल बी द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स larger atomic size. That was all about the intermolecular forces, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसके हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं। फर्स्ट वन वाज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, सेकंड वन इज द आयन डाइपोल फोर्सेस एंड द थर्ड वन इज द इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फोर्थ जो है हमारे पास वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। उसके अंदर इंशाल्लाह थोड़ी डिटेल है, उसके कुछ फैक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं जो कि एक सेपरेट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। Next time inshallah we will come up with the London dispersion forces. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.